Hey there, this is Pranshu Verma and let's start our next lecture on work energy part. I think this is going to be fourth lecture. Okay, और in the last lecture अपन लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, है ना. एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था. ठीक है, these three things we have studied. So on all these topics we are going to do solve numericals. Okay, and the first numerical is very easy. And the numerical says the find the work done by the engine of the car to increase or change its speed from 15 meter per second to 25 meter per second. Okay, while the mass of the car is 1200 kg. Okay, so in this type of question you don't have to doing nothing, you just apply to work energy theorem as there is no loss. Okay, work energy theorem. What does the work energy theorem say? W equal to delta Ke. The work done is equal to change in kinetic energy. So what is the kinetic energy change? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, so half m Vf square minus Vi square. Half m 1200 into Vf का square क्या होगा? Vf final velocity is 25 का square minus initial velocity was 15 square. So in these types of question you don't need to have the time. 1 by 2 into 1200 it will come 600. 25 square 625 minus 15 का square 225. Remember these things also. 600 into this will come equal to how much? 400 I think so, है ना. Yeah, it is 6 चौक 24 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, so now you can write it as these three can be written as kilo. 30 can be written as kilo. So the work will come equal to 240 kilojoule. 240 kilojoule. Easy question. उतारो उसको. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देर इज़ अ गड़बड़. ठीक है, मैं सेंटेंस बना नहीं पाया था, टाइम का भूल गया था, तो टाइम मैंने बाद में लिख दिया 2 सेकेंड. सो इन दिस क्वेश्चन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड विद फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड. ओके, with a velocity of 330 meter per second. The mass of the body is 300 gram and the kinetic energy you have to find at t equal to 2 seconds. Okay, and you have also find the work done, by the gravitational force at the same time. Okay, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है. तो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होंगे क्योंकि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम आई है, वहाँ पे आपने वर्क नहीं किया था, यहाँ पे वर्क करोगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी द बॉडी इज हियर एट t equal to 2 seconds and it was here at t equal to 0 second. Okay, now get start. The initial kinetic energy of the ball is, you can easily find initial kinetic energy. What was the initial? Half m V initial square. Half m, how much m is 300 but in gram, so 10 to the power minus 3 will come into the picture. Or V initial, how much is V initial? 30. Okay, so it comes 2 will cancel out with 15 और 15 into 3 blah. यार बहुत ज़्यादा टिपिकल कर देता हूँ मैं कभी अपने लिए प्रॉब्लम कर देता हूँ. 3 नहीं 9 मतलब 3 into 3 equal to 9. Okay, and 0 will cancel out, this 0 will cancel out, so there is no be 0. So 15 निम्मा कितना हो एक बताओ? 135. 135 is the initial kinetic energy of the body which is going to upward. Okay, now we have to find the kinetic energy at point 2 after the distance 2 seconds. Okay, so you have two things. Now you can find the value by the work formula, or you can find the velocity at t equal to 2 distance. Okay, so you can do whatever you want to do. Okay, here the velocity is 30 meter per second. Here let's consider is v. The acceleration is equal to minus g as the body is going to upward. So first equation will get applied, v equal to u plus at, u equal to 30
E equal to G, G is equal to 10 and T is equal to 20. So it will come equal to 10 meter per second. How much it will come? 10 meter per second. V final. Okay. Okay. So kinetic energy we have to find at T equal to 2. So half M will come equal to 300 into 10 power minus 3 and the V square which come 100 into 10 into 10. Okay. So it will come 5. Okay. 5 and this 0 0 1 2 3 3 0 or minus 3 cancel out. 3 will remain और 5 will remain. So 5 into 3 15 जूल. इनिशियली कितना लेके चला था भाई, कितनी लेके चला था 135, बची कितनी 15, अभी तक 15 ही बच रही है. ओके. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू हाउ मच, के इनिशियल माइनस के 5. ओके. वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज. ठीक है, चेंज की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है. यहाँ पे ये बताना नहीं है कि माइनस और प्लस. ओके. सो जो बड़ा हो बड़े में से छोटा. ओके. बिगर माइनस स्मॉलर. सो इट विल कम इक्वल टू 120 जूल. ओके. नाउ आसान था उतारो. This is the third question. Okay. There is a gap of approximately 1 hour or 90 minutes, approximately 1.5 घंटा in between the second question and this third question. Okay. Why it happens? This is a long story. हम कभी बात करेंगे मिल के. ठीक है. सर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, कुछ भी वैसा नहीं है. ठीक है. It's just a simple thing. My father came to home और मुझे मेरी जो कार है, मेरे पापा जी को वो कार है, उसको पार्किंग में रख के आना था. तो इट टेक सम टाइम. ओके. फिर मैं खाना खाने चला गया, फिर मैं बहुत सारा काम करा, टीवी भी देख के आया थोड़ी देर. ठीक है. थोड़ा सा गाना भी सुन लिया. ओके. एनरिके द हीरो सुन के तेरे करके गिटार सीखदा. और द क्वेश्चन इज नाउ फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ 200 ग्राम. ओके. 200 ग्राम. Right now I give you the mass of the ball, that is 200 gram. Okay. Falling from 500 meters. Okay. We have h. Okay. Wait. We have h, we have mass. Oh, total energy कितनी होगी जरा बताओ. सब लोग सोचो at a height. अच्छा, आज मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई कैन ट्राई ओनली. ठीक है. समझना ना समझना इट जस्ट अप टू यू. ओके. हाँ, मतलब समझ गए तो आई एम सक्सेसफुल, और नहीं समझे तो मैं फेल हुआ. ओके. जब भी कोई स्टूडेंट टॉप करता है या पास होता है तो वो अचीवमेंट होता है उसका हिज पेरेंट्स एंड हिज टीचर्स. ओके. या हर टीचर, हर पेरेंट्स एंड हर. ओके. बट यदि कोई स्टूडेंट फेल होता है तो दैट इज़ द फेलियर ओनली ऑफ हिज टीचर और हर टीचर. ओके. तो याद रखो, फेल हो गए तो फेल मैं हूँ, आप नहीं हो, और पास हुए तो आप हो, आपके पेरेंट्स, फिर मैं हूँ. ठीक. सर फिलोसफी झाड़ दी. ठीक है. दिस इज़ द एच फ्रॉम वेयर अ बॉल इज़ फॉलिंग. ओके. नाउ आप लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हो तो आपको इतना मेरे ख्याल से पता होगा कि at this point, at the initial, the velocity of the ball is 0. Yeah, you should know. If a ball is in having a velocity 0, then kinetic energy will become उसको 0 हो जाएगी, क्योंकि kinetic energy formula is mv square. There is the virtue of motion, there is the property of motion. When there is a body which is not in the motion, it has no kinetic energy. This is the statement. What is the statement? The body is stationary, it has no kinetic energy. साफ. तो the total energy of the body when it is in stationary, the total energy will become equal to potential energy. बाप रे बाप. ठीक है, समझ में आया? Total energy of the body will become equal to potential energy when the body is stationary. When the body is stationary, the potential energy will be the total energy. The formula of the potential energy is
well known to you, mgh. You have m, you have h, you have g always. g की वैल्यू तो हमेशा हमको होती है 200, but it is in gram, so we take 10 to the power minus 3, the g 10, the h triple h. यार मेरे को आज तक डाउट है वो ट्रिपल एक्स था या ट्रिपल एच था, ठीक पता है ना आप लोगों को? कोई WWE देखता है आप लोगों से? यदि देखता है तो हाँ बताना मेरे को, ट्रिपल एच कमेंट करना वीडियो में प्लीज़ कि वो ट्रिपल एच है या ट्रिपल एक्स है। आई थिंक ट्रिपल एच है, उसका नाम अलग अलग होगा, एच 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 3 बार आता होगा तो इसलिए उसने ट्रिपल एच रखा। तो ये हो जाएगा 2 0 1 2 3 0 2 3 5 0 और या माइनस की 3 0 है ना। तो पहले सेटल करो 10 टू द पावर्स को। सबसे पहले याद रखो कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो आप सबसे पहले सेटल करो 10 पावर्स को, ओके। गिनती करो है ना, काउंट करो 1 0 2 3 0 सॉरी ओए 3 कहाँ से 3 0 और 2 0 2 0 2 0 4 0 5 zeros 5 0 एंड माइनस 3 0, तो 5 minus 3 0, ओके दैट विल कम 2, ओके। नाउ 2 into 5 ये तो खत्म, 2 into 5 दैट विल कम अगेन 1 0 और अनदर 0। This can be written as kJ. This will be the total energy. The question was asked that find the total energy. We find the total energy of the body, and as we know what we know कि according to the conservation of energy, the total energy of a body never change. That means this is going to be constant. This is the value of constant value. मतलब बॉडी चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं हो भाई, कहीं भी हो, एनर्जी नेवर गोइंग टू बी लूज, ठीक है। एनर्जी कम नहीं होने वाली, एनर्जी ज़्यादा भी नहीं होने वाली, ठीक है। तो एक्चुअली में हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं कि टोटल एनर्जी इज 0, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 0, वहाँ पे इस चैप्टर में हम एक वर्ड नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम आगे जाके उस वर्ड को मीनिंग समझेंगे कि उस वर्ड को ना लगा के हम कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, ओके। वहाँ पे एक वर्ड लगना चाहिए, नहीं लगाते हैं हम लोग, वो प्रॉब्लम है क्योंकि आप नहीं समझ सकते उस चीज़ को। आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज अ वर्ड शुड बी इन देयर दैट isolated system, isolated, you wellly known that what is isolation, ओके। और कोरोना में तो अच्छे अनपढ़ आदमी को भी पता चल गया कि भैया आइसोलेशन क्या होता है। हाँ क्या होता है भाई साहब? आइसोलेशन वो होता है जब अकेले हो जाओ, है ना, जब कोई छोड़ के चली जाए, है ना, तो बड़ा पछताते हैं। नहीं, बड़ा पछताते नहीं, मतलब हम एक कोने में दुबक के रोते बैठते हैं ना, उदास हो जाते हैं। तो वही चीज़ मतलब आइसोलेशन होता है उस एट दैट मोमेंट व्हेन वी गेट आइसोलेटेड, सो देयर इज नथिंग गोइंग टू आउट इन फ्रॉम अवर्स, ओके, एंड नथिंग गोइंग टू बी कम इन अस, ओके। लाइक दिस कि मम्मी कितना भी समझाएं, पापा कितना भी समझाएं, हम नहीं समझते, ठीक है, हम तो उसकी यादों में हैं, ओके ओके। और अंदर से हमारे वो याद जाती भी नहीं, निकलती भी नहीं है, मेमोरीज वे निकलती भी नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेशन। यहाँ पे भी हमेशा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे ना, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल ओनली एप्लीकेबल वेयर द सिस्टम इज आइसोलेटेड, where the external properties are not in there, the body are not going to affect the body, there you can use the work energy theorem, conservation of energy, ठीक है। धीरे धीरे आप जान जाओगे कि क्या है, लेकिन वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम स्टेटमेंट में यूज़ नहीं करते, ओके। सो हियर द टोटल एनर्जी कम्स इक्वल टू 1 kJ, okay। Now let's see here, I asked another question that after 2 seconds, मतलब after 2 seconds हो चाहे 10 seconds हो, total energy never going to be changed, okay। But I said कि also find the potential energy and the kinetic energy at that point, मतलब 2 seconds के बाद। What is the position of the ball after 2 seconds? You can find this value. You can find this value by which equation? By first equation, or you can find the value of velocity, okay, at t equal to 0, at t equal to 2 seconds, sorry,
at t equal to 2 second, v equal to u plus at. Okay, initial velocity was 0. Okay, a is 10 and the positive 10. Why? The ball is falling down. The ball is falling down. The acceleration is also in downward. The motion is downward. The acceleration is downward. Ball is downward. Velocity is downward. That's why the acceleration will come positive when we project a body from down to up, from ground to sky. Okay, तो उस कंडीशन में, in that condition, the motion of the body is upward, but still the acceleration will go downward. Okay, and what is the acceleration? Acceleration is the acceleration due to gravity, the earth acceleration. Okay, so that is the value, that is equal to 10. Okay, so in that condition it going to be positive. Okay, so we come equal to 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर हम t इक्वल टू 2 बोल रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी बोल दो t इक्वल टू 2, यहाँ पे बोल दिया, तो यहाँ पे v इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकेंड. ओके ओके, अब मैं इसको फिगर को हटा रहा हूँ क्योंकि इट इज़ यूजलेस. इट जस्ट अ सिंपल थिंग दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ओके, नाउ you can find the kinetic energy. What will be the value of kinetic energy? That will come mv square, half mv square, sorry. So m, what is the value of m? M is equal to 200 grams. So 10 to the power minus 3 will come. Okay, and the v square 2020, मतलब ये ईयर की बात नहीं हो रही है, ये तो ईयर बहुत खतरनाक था, है ना. हाँ सर, बहुत खतरनाक था, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला कब आया कब चला गया. ओके ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2020 400. द स्क्वायर ऑफ 20 दैट मीन्स 400. ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर. है 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, डिक्की चिक्की डुक डक डुक डुक. सो दैट विल कम 40 जूल. That will come 40 joule. Okay, now the total energy is 1 kg. The kinetic energy, मैं एक बार देख लूँ kinetic energy गलत तो नहीं आई हमारी, ठीक है. ओके, kinetic energy गलत नहीं आई है, kinetic energy सही है. ओके, so the total kinetic energy is 40 joule now. Okay, and the total energy is 1 kilojoule. 1 kilojoule. So from this formula you don't have to apply the value of mgh now. Why? As you know the total energy, you know the kinetic energy. Total energy never going to be changed at any point, at any particular point of the motion of the body. The total energy will going to be remain same. Total energy going to be remain same, but the kinetic energy and the potential energy will change. At the top of the motion, potential energy is only the energy the body has, but at the ground, but just before hitting the ground, but ध्यान दो मैं क्या बोला, just before hitting the ground the body has only kinetic energy and at that point potential energy becomes 0. इन चीज़ों को रट लो, दिमाग में डाल लो, ठीक है. दिमाग को ऐसे खोलो, उसके अंदर भर दो, लिख के चिट्ठियाँ भर दो. ओ भैया काट मत लेना, मेरे नाम लग जाएगा. है सर, आपने बोला था, हमने दिमाग काट दिया है. हमारे बच्चे ने कहा आपके पेरेंट्स आएंगे. नहीं, ठीक. तो just think that just when the body is in up to the top of the motion. Okay, when the body is at the top of the motion, the body has only potential energy. Okay, मैं स्टेटमेंट को समझा रहा हूँ आपको कि the body has only potential energy. Okay, नहीं, but the body has only kinetic energy when it just before hitting the ground. Just टच हो गया. ओके, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड होने से जस्ट बिफोर, तो इट हैज़ ओनली kinetic energy at that moment. So right now in the middle, the whole potential energy will convert into kinetic energy. So the kinetic energy will increase, and that's why the potential energy will decrease. Potential energy become 0, kinetic energy become most highest, और फिर ऊपर जाएगी. वो बात अलग है, वो आगे समझेंगे कि ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कोलिजन. ओके, वी सी लेटर इन दिस चैप्टर. ओके, तो अब देखो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. काइनेटिक एनर्जी वी हैव, ओके, द टोटल एनर्जी वी हैव, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो टोटल एनर्जी इज 1000 जूल.
काइनेटिक एनर्जी कम्स इक्वल टू 40 जूल, सो इट विल कम 960 जूल। ओके, इस क्वेश्चन को समझाते टाइम, ठीक है, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली जो आपके लिए वेस्ट ऑफ द टाइम हो। कई सारे गाने बताए, ठीक है, कई सारी नौटंकी की, ठीक है, क्योंकि मेरा मूड अच्छा है इसलिए। ओके, सो क्वेश्चन आसान था, उतारो उस क्वेश्चन को। हम ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, कई सारे क्वेश्चन करने हैं, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बाद में करेंगे जब चैप्टर खत्म होगा। तो उतारो। इट कम्स अगेन, द इंक्लाइंड प्लेन कम्स अगेन। ओके, प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है सब। देखो अभी जब तक आप 11th के चैप्टर नंबर फ्लूइड तक नहीं पहुंचते हो, ओके, मैं मानता हूँ फ्लूइड थोड़ा सा घुमा दीजिए, तब तक क्वेश्चन आसान है सारी पूरी फिजिक्स के अभी तक, ठीक है। फ्लूइड में हल्का सा ट्विस्ट है, हल्का सा। देन आप पहुँचोगे थर्मोडाइनमिक्स में, थर्मोडाइनमिक्स में आपको घुमाव मिलेगा, ठीक है, और फिर रेडियन 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का π/6 का रेडियन का आपको घुमाव मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर इजी फिजिक्स, फिर 12th क्लास में टर्न लेगी ज़्यादा। ओके, तो अभी भी कुछ नहीं है, अभी बहुत आसान चीज़ है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो व्हाट द क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इन द गिवन फिगर और द गिवन क्वेश्चन। ओके, जो भी है प्लानिंग, ठीक है। तो ये फिगर दी हुई है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, तो आसान हो गया और ज़्यादा। तो हमें जस्ट फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। सो बिफोर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके, वी जस्ट हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। ओके, कोई दिक्कत? नाउ हमें कुछ ऐसा तो बताया नहीं गया है कि किस टाइम पे बतानी है वेलोसिटी, है ना, किस टाइम पे बतानी है। चलिए, तो मैं एक काम कर देता हूँ, उसमें एट t इक्वल टू 5 सेकेंड लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वॉज इनकम्प्लीट। ओके, नाउ लेट्स सी द एबिलिटी ऑफ दिस मास 10 kg, दिस इज द मास 10 kg। ओके, यहाँ ही बना देते हैं एबिलिटी। दिस विल बी द वेट mg, दिस विल बी द 60 डिग्री, एंड दिस विल बी mg cos 60। देयर इज़ नो फ्रिक्शन, बट नॉर्मल तो ड्रॉ करना ही होगा, जरूरी है, नहीं तो नंबर कटेंगे। और दिस विल बी mg sin 60। ठीक है भाई, अरे बोल दिया करो, राम जी की जय बोल दिया करो। दिस इज़ 20 न्यूटन। ओके, जिसकी भी जय बोलनी है बोल दो यार, अब यहाँ पे बोलने मत लग जाना आपको कि सर बीजेपी वाले हो गए, कांग्रेस जिंदाबाद। तो भाई मेरे को मतलब नहीं है कांग्रेस और बीजेपी से, ठीक है, हमको तो हमसे मतलब है, हमको हमसे मतलब है, आपको भी अपने से मतलब रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था थोड़ी दिन के लिए सेल्फिश बन जाओ, ठीक है। सलमान खान का वो गाना सुनो, वो सड़ी हुई मूवी का, कौन सी मूवी थी वो, ठीक है, जो भी थी अभी लास्ट टाइम आई थी, जो भी थी, अनिल कपूर भी था इसमें। ओके, दिस इज द एबिलिटी। ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, क्योंकि आपको सब पता है इस चीज़ के बारे में। ओके, सो नाउ देयर इज नो फ्रिक्शन, सो दो दीज विल बी नो कंसिडरेबल। सो वी जस्ट गो टू द एक्स एक्सिस, देयर mg sin थीटा विल बी नॉट इक्वल टू 20 न्यूटन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ mg sin थीटा। ओके, क्योंकि हमें पता नहीं मोशन किस तरफ है ना, यही नहीं पता अभी मोशन किस तरफ है, अल्ले वाला, ठीक। तो m इक्वल टू 10, g इक्वल टू 10, c sin 60 कम इक्वल टू √3/2। तो दिस विल become equal to 550 50√3। oh my gosh 5√3 50√3 सॉरी 50√3 50 into 1.7 √3 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको। तो 17 पंजे 85। ओके, 85 न्यूटन। 85 न्यूटन इज गोइंग डाउनवर्ड एंड 20 न्यूटन। ऑब्वियसली बात है, ये स्ट्रिंग लगी है, तो स्ट्रिंग में और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक टेंशन बनेगी, ये टेंशन 20 न्यूटन की इक्वल हो जाएगी। ओके, और ये 20 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी टेंशन होगी। ओके, सो दिस 20 न्यूटन विल बी लाइक दिस। ओके, सो mg sin थीटा कमिंग एज 85 न्यूटन। हटा दूँ उसको। ओके, आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। 85 न्यूटन। ओके,
नाउ तो नेट फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियस ही बात है हम जी, साइन थीटा माइनस टेंशन, जो भी टेंशन है, ओके, दिस इज 85, दिस इज 20, सो द net force is 65 Newton. Okay, why we are calculating this, as we have only just have to find the value of kinetic energy, so why don't we are directly finding the velocity, as we don't have the value of acceleration. यदि हमें acceleration नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पे net force है तो acceleration जरूर होगा, तो if there we don't know the value of acceleration, so we can't find the value of velocity at t equal to 5 seconds, so we have to find the value. सर इतना ज्ञान देते हो आप लोग, शर्म नहीं आती इतना ज्ञान देते हुए बच्चों को? अरे शर्म क्या करनी, जिसने कर ली शर्म उसके फूटे करम। ओके, सो from the second law of Newton that F net will become equal to m into a, that will come equal to 65, so a will come equal to 65 upon m, or m is given to be 10, so a will come equal to 6.5 meter per second square. Okay, now as we have a, as we know the initial velocity will be 0. आप लोग ये क्वेश्चन बहुत कर चुके होंगे 1D और 2D में कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ज़्यादा क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, सो वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू u प्लस ए टी से, u 0 a 6.5 t इक्वल टू 5, ओके, सो वी विल कम आउट इक्वल टू be 5 into 5 5, 6.5 30, ओके 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 ओके, 30 into 2 35, okay, meter per second. This is the velocity, so it comes equal to meter per second, and this is the acceleration that will comes equal to meter per second square. So we have the velocity now, so we can easily find the kinetic energy, half mv square, half। और क्या जिंदगानी है और क्या जिंदगानी है। दिस इज सो टिपिकल सर, आप बहुत टिपिकल कैलकुलेशन करवा देते हो हमसे, क्या करें बच्चों, हम हैं आदत से मजबूर। 325 इंटू 32.5 अपॉन 2, ठीक है। प्लीज़ फाइंड द वैल्यू, प्लीज़ कैलकुलेट द वैल्यू विल कम इक्वल टू इन जूल्स, ओके, एज द मास इज इन kg, एज द वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो द वैल्यू विल कम इक्वल टू जूल, ओके। सो उसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग उतारिए इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन था, इससे अगला करा रहा हूँ, उसमें और भी मजा आएगा, उतारो। हे सर ये क्या दे दिया, क्वेश्चन घुमा दिया मैंने इस बार, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन यदि ऑफलाइन क्लास होती ना, बहुत सारे आपके हाथों से सॉल्व करवाता मैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ऑनलाइन है इसलिए मैं आपके हाथों से ज़बरदस्ती करा नहीं सकता, ठीक है। इट्स अप टू यू वांट टू डू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यू कैन डू। और जो बच्चा चाहेगा, मैं आपको आज एक ऑफ़र दे रहा हूँ, ये केवल पर्सनली है ऑफ़र, सही में बता रहा हूँ, पर्सनल। एक बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप हर कोई मेरे को ये पर्सनली मैसेज करो, मेरे को जो भी बच्चा पर्सनली मैसेज करेगा कि सर लॉस ऑफ मोशन के या वर्क एनर्जी के 1D 2D के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दीजिए, हमको MCQs दीजिए जो डिफरेंट हो, ठीक है। आई कैन डू दिस थिंग। मैं आपको 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन भी दे सकता हूँ एक चैप्टर पे। आई हैव सो मैनी क्वेश्चंस, भाई साहब इतनी क्वेश्चन है कि करते करते आप परेशान हो जाओगे। हर चैप्टर के लिए आपको एक पेन खरीदना पड़ेगा, इतने क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक। तो जो भी बच्चा मेरे को पर्सनली मैसेज करेगा कि सर प्लीज़ ये क्वेश्चन भेज दो इस चैप्टर पे, मैं उसको क्वेश्चन भेजूँगा, लेकिन एक ही शर्त पे कि आप मेरे को 3 दिन में, ओके 3 दिन में 50 क्वेश्चन 3 दिन में करके दें सॉल्व। यदि आपको खुद करना पड़ेगा ये चीज़ें अभी, भाई साहब यदि नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स who's preparing for GE or NEET or for any other competitions, okay, so you are competitive with them, okay, आप competition में उनके साथ, तो आपको उनसे आगे रहोगे तो रिजल्ट दे सकोगे। आप सोचोगे कि हाँ आई एम बहुत इंटेलिजेंट या आई एम सुपर इंटेलिजेंट, उसी में रहोगे कि भैया 100 बच्चे हैं मेरे स्कूल में एंड आई एम द इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट इन देम, तो आप गलत फहमी कर रहे हो, क्योंकि आप अब 100 के साथ नहीं हो, अब
कई लाखों के साथ हो, ठीक है। तो पूरे इंडिया के साथ कंपेयर करो अपने आप को कि आप कहाँ पे हो, ओके। और एक चीज़ और समझा रहा हूँ मैं आपको, मोटिवेशन मेरा काम नहीं है, ठीक है। आई कांट मोटिवेट टू एनीवन, क्योंकि मैं करता हूँ तो निगेटिवली मोटिवेट करता हूँ ठीक है। हाँ, डीमोटिवेशन नहीं, निगेटिव मोटिवेशन अलग होता है, ओके। सो मैं एक चीज़ और समझा रहा हूँ कि डोंट बी थिंक दैट यू आर स्टूपिड और यू हैड यू आर नथिंग, ठीक है। कि आप पुअर हो एकदम, मतलब पुअर वाला, गरीब वाला पुअर नहीं, पढ़ाई में पुअर न हो, ओके। और आपको कुछ समझ में नहीं आता, ये मत समझो। भगवान ने दिमाग सबको एक ही दिया है, तो आपके पास भी दिमाग सेम है, आप केवल और केवल ट्राई नहीं कर रहे हो, बस दैट्स इट। तो ट्राई 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 अगेन, ट्राई मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आप परफेक्ट हो सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, लेक्चर भी आज खत्म हो जाएगा अभी इसके बाद, ओके। सो देर आर 2 blocks 20 kg 10 kg, here the coefficient of friction is 0.2, here 0.3, okay, and this angle is 30 degree, okay। and what is the question, kinetic energy find करनी है for the both blocks in 3 seconds। पहले इसका देख लो या इसका देख लो, इसका देखो, आसान है ना। इसका एफबीडी देखो, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, कंसीडर कर लो किसी भी तरह। दिस विल बी द टेंशन हियर, ओके, एंड दिस इज द वेट डाउनवर्ड, ओके। सो दिस विल कम इक्वल टू 100 न्यूटन, है ना, जी की मल्टीप्लास। नॉर्मल रिएक्शन विल कम इक्वल टू 100 न्यूटन, सो this will come equal to 100 multiplied, so it comes equal to 20 Newton, okay, the tension and the friction force, okay। now this FBD, let's see here, this will be the normal reaction, okay, this will be the weight, okay, this angle will be 30 degree always, the angle between the normal and the weight will be the angle of inclination, will be the angle of inclination। लेकिन बट रुको, एक गलती कर रहा हूँ मैं, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, क्योंकि दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द वर्टिकल, ये वर्टिकल से है, और हमारा जो होता था वो कहाँ से होता था, हॉरिजॉन्टल से। कहाँ से होता था, हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 30, ये 90, ये 60 हो जाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी द एफबीडी फॉर दिस। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये कितना जाएगा कंपोनेंट यहाँ पे, mg sin 60, mg sin 60, here mg cos 60, okay, okay। now this is normal reaction force। और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती कर दी सर, mg cos 60 कहाँ, अच्छा यहाँ ये गलती कर दी मैंने, दिस इज mg sin 60, दिस इज mg cos 60, ओके। एंड ये किस तरफ ले रहा हूँ मैं, इस तरफ, ओके। तो इधर टेंशन है, इधर फ्रिक्शन फोर्स मान लिया, ओके। इधर फ्रिक्शन किस तरफ मानोगे, इस तरफ ही मानोगे। वाई इट इज़ द टेंशन एंड द फ्रिक्शन कम्स टुगेदर, वाई इट इज़ हैपनिंग। भाई हम मान लेते हैं कि ब्लॉक का जो मोशन है वो डाउनवर्ड है, दिस इज द मोशन डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो हियर इन द फर्स्ट एफबीडी द कॉज ऑफ द मोशन इज टेंशन, बट इन द सेकेंड एफबीडी द कॉज ऑफ द मोशन इज mg sin 60, okay, mg sin 60। so the friction always comes in the opposite direction of motion, so the friction will come together with the tension, okay, और tension will be away from the block, tension will be away from the block। याद रखोगे ये चीज़ें, या भूल जाओगे, याद रखोगे ना, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव बोथ FBDs, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है। इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, दिस इज 20 इंटू 10 इंटू cos 60, cos 60 वैल्यू 1/2, सो इट विल कम 100। normal reaction will come equal to 100, so friction force will come equal to 100 into 0.3, that will come equal to 30 Newton, 30 Newton plus T, okay, okay। and घिच पिच मचा दी मैंने बहुत ज़्यादा। mg sin 60, mg sin 60 I think so it will come 100
√3। जिन बच्चों ने निकाला होगा उनको पता चला होगा 100√3 कैसा आया। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पिछले 3-4 चैप्टर से करते आ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों की पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स सी फर्स्ट FBD, पहली FBD देखते हैं। तो F net विल कम इक्वल टू T माइनस फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, है ना, T माइनस फ्रिक्शन फोर्स। और here from here we can say that F net that is equal to m into a, m की वैल्यू 10 है, 10 into a T minus 20, that is equation number 1. Now the second equation, F net comes equal to, F net is due to this thing 100√3 minus T minus 30, 100√3 minus T minus 30, this is the value. ओके 100√3, इसको भी कैलकुलेट कर लो। √3 की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 100 into 1.7 माइनस T माइनस 30, सो इट विल कम 170 माइनस T, इट विल कम 140 माइनस T। और हियर F net इज इक्वल टू व्हाट, F net कम्स इक्वल टू 20 into A, 20 into A, 20 into A. This is the second equation. Now we want to do, what we want to have, we want to have acceleration. So let's see, just add the equations, T minus 20, 10 into A, T से T गया, 140 minus 20, that will come 120. Easy, the things are easy, yes, is it? Or this will come equal to 20, 30 है, so A will come equal to 30, 120 divided by 30, that will come equal to 4 meter per second square. Okay, 4 meter per second square. Now acceleration came 4 meter per second square, and we have the time is 3 seconds. So from the equation number first we can find the value of velocity. So what will be the velocity? देखो velocity दोनों की सेम होगी. Why it is same? The acceleration of both bodies are same, so the velocity will be same for the both bodies. Okay, always remember it, the acceleration is same for the both bodies, so velocity will same. Okay, initial velocity let's consider it 0, 4 and T is equal to 3, so it will come 12 meter per second. So velocity comes equal to 12 meter per second, but the kinetic energy will going to be differ as their masses are different. 12 into v square, that will come equal to 12 का square 144 आया ना. This will come equal to 720 joule, I think so, and the K2 will come equal to half 20 into 144 also, क्योंकि वहाँ पे भी 12 का स्क्वायर होगा. So this will come equal to 72 का स्क्वायर, that will 144. ओके, एक जीरो हो जाएगी 1440. 1440 में, सन 1440 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी सर. कई बच्चे बोल रहे होंगे सर क्रांति क्या है, कौन है क्रांति. ठीक है, तो आप लोगों को आज क्वेश्चन समझ में आए होंगे. मुझे पता है न्यूमेरिकल आपके लिए टिपिकल है, मैं जानता हूँ. आई कैन फील यू, आई कैन पता नहीं. ठीक है, मतलब मैं जानता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन जब तक किसी चीज़ को हम करने से डरते हैं तब तक वो चीज़ हमें टिपिकल लगती है. ओके, और जैसे ही आप करना चाहोगे उसको आपके लिए आसान हो जाएगी. तो मेरा ऑफ़र याद रखिएगा सब लोग कि मैंने क्या ऑफ़र दिया आप लोगों को. आपको क्वेश्चंस मैं बहुत सारे दे सकता हूँ. आई कैन गिव यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन वन चैप्टर, और मैं सॉल्व भी कराऊंगा. ऐसा नहीं है कि मैं बस दे दिया बहुत छोड़ दिया. आप लोगों को मैं क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन आप चाहिए कि भाई आप करने वाले होने चाहिए. तो ओके, सो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहाँ पे हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, फिर कोलिजन पढ़ना है. मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी इस चैप्टर में. ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मी. थैंक यू.